آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے لیے ہندوستان تیار۔ 16 جنوری کو وزیراعظم مودی کے پیام کے ساتھ ویکسینیشن کا عمل ہوگا شروع۔ ریاست میں ٹیکہ کاری کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات، اضلاع کو پہنچائی جا رہی ہیں ویکسینیشنز۔ 31 جنوری کو پلس پولیو، 5 سال سے کم عمر بچوں کو پلائی جائے گی پولیو خوراک۔ شمس آباد سے شکاگو کے لیے ایئر انڈیا کی راست پرواز، کل سے ہر جمعہ کو یہ فضائی خدمات ہوں گی دستیاب، عہدیداروں کا بیان۔ اور تیلگو ریاستوں میں سنکرانتی تہوار کی دھوم، ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے جوش و خروش۔ عوام کو کورونا کے پھیلاؤ کے بارے میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہوں تو ماسک کا استعمال کریں اور کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق بار بار ہاتھ دھوئیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی کورونا کو روکا جا سکتا ہے۔ ہفتے سے ہندوستان میں کورونا ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہم کا افتتاح کریں گے۔ اس مہم کو وزیراعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لانچ کریں گے۔ اس موقع پر وہ چند منتخب اسپتالوں کے طبی عملے کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس تقریب میں دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال بھی موجود رہیں گے۔ پیش ہے مزید تفصیل۔ کووڈ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا 16 جنوری سے آغاز ہو رہا ہے۔ کووڈ شیلڈ اور کو ویکسین کی ٹیکہ کاری کے لیے ملک بھر میں تیاریاں کی گئی ہیں۔ ویکسین ملک بھر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں، جہاں سے چھوٹے شہروں اور قصبوں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ آسام سے گوا تک، جموں کشمیر سے کیرلا تک یہ ویکسین ملک کے دور دراز علاقوں تک بہت حفاظت کے ساتھ پہنچائی گئی ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران 1 کروڑ 10 لاکھ کووڈ ٹیکے تقریباً 95% 60 ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کو پہنچائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح بھارت بائیو ٹیک کے 2 لاکھ ٹیکوں کو حیدرآباد سے 11 شہروں کو منتقل کیا گیا ہے۔ 16 جنوری کی صبح وزیراعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹیکہ کاری مہم کا افتتاح کریں گے۔ پہلے دن ملک بھر میں قائم کیے گئے 2934 مراکز میں تقریباً 3 لاکھ فرنٹ لائن واریئرز کو یہ ٹیکے دیے جائیں گے۔ بعد ازاں 18 جنوری سے ٹیکہ کاری کی مہم روزانہ جاری رہے گی۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ ویکسین دینے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ 1 کروڑ محکمہ صحت کے عملہ اور فرنٹ لائن واریئرز کو یہ ٹیکے دیے جائیں گے۔ بعد ازاں 50 سال سے زائد عمر والے افراد کو ٹیکے دیے جائیں گے۔ گزشتہ دنوں چیف منسٹر کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں وزیراعظم مودی نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔ 16 جنوری سے ہم دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہم سبھی کے لیے گورو کی بات ہے کہ جن 2 ویکسین کو ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن دیا گیا ہے وہ دونوں ہی میڈ ان انڈیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 4 اور ویکسین پروگریس میں ہے، اور جب اور ویکسین آ جائے گی تو ہمیں فیوچر کا پلان کرنے میں وہ بھی ایک بہت بڑی سویدھا رہے گی۔ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، سرکاری ہو یا پرائیویٹ، پہلے ان کو ٹیکہ لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صفائی کرمچاری ہیں، دوسرے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ایسے ساتھیوں کو بھی پہلے چرنوں میں ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ طے کیا گیا ہے کہ پہلے چرن میں ان 3 کروڑ لوگوں کو ویکسین دینے کے لیے جو خرچ ہوگا۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے کہا کہ انتہائی شفاف اور خوشگوار انداز میں ٹیکہ کاری مہم کے لیے حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کی روک تھام ہی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ ایک سال میں یعنی آج صبح کا اگر میں ڈیٹا دیکھتا ہوں تو دھیان میں آتا ہے کہ 1 کروڑ 3 لاکھ 95,000 اور 278 کیسز جو ہے سارے دیش میں ہوئے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سنتوش کی بات یہ ہے کہ ان 1 کروڑ 3 لاکھ کیسز میں سے آج صبح تک 1 کروڑ 16,859 لوگ آپ سب کے، ڈاکٹروں کے، ہمارے کووڈ واریئرز کے، سبھی کے پریاسوں سے وہ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ کووڈ ویکسین کی تقسیم میں
कोविन डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म अहम किरदार अदा करेगा, जहां टीका लेने वालों और टीके के स्टाफ की तफसीलात दस्तयाब होंगी। अब तक 80 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविन पर अपना नाम दर्ज करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। तेलंगाना रियासत में भी इंतजामात में तेजी लाई गई है। हैदराबाद से जिला मुस्तक़र के लिए सख्त सिक्योरिटी और खुसूसी इंसुलेटर गाड़ियों में वैक्सीन को मुंतकिल किया जा रहा है। किस जिले को कितनी वैक्सीन दी जानी चाहिए, इसके लिए महकमे सेहत की जानिब से एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से तकरीबन 3,64,000 डोज पहुंच गए हैं। आज 20,000 कोवैक्सीन के डोज वसूल हुए हैं। ये वैक्सीन पहले मुश्तरका अजला के इलाकाई स्टोरेज मराकज़ को मुंतकिल किए जाएंगी, जहां से ये डोज अजला को सरबराह किए जाएंगे। टीकाकारी के लिए दरकार 15 लाख सिरेंज अजला को सरबराह किए जा चुके हैं। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने वैक्सीन की सप्लाई और टीकाकारी के सिलसिले में तमाम अजला के DMHO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा रिजवी, यूनिसेफ अहदेदारों ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से पहले दिन हर मरकज़ पर 30 अफराद को टीका देने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में रियासत भर के 139 मराकज़ पर टीकाकारी अंजाम दी जाएगी। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी दवाखाने और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स शामिल हैं, जबकि 40 खानगी दवाखानों में भी टीकाकारी के इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गांधी अस्पताल और नारसिंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तिब्बी अमले से 16 जनवरी को तबादला ख्याल करेंगे। तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स के बशमूल 866 मराकज़ पर टीकों को रखा गया है। तमाम कोल्ड चेन मराकज़ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल DG जितेंद्र की निगरानी में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रियासत के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि टीकाकारी के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर NISCPR को तश्कील दिया गया है। रिसर्च का यह नया इदारा मरकज़ी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करेगा। मरकज़ी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी व सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस इदारे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि साइंसी तहकीक में मुल्क सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि साइंसी तहकीक में हिंदुस्तान को एक नुमाया मुकाम हासिल है। इसरो के सदरनशीन के शिवन ने कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तहकीक समाजी बहबूद के लिए काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि इंतहाई कम लागत पर अहम तहकीक की जानिब इदारा गामजन है। डॉक्टर के शिवन आकाशवाणी के नुमाइंदे से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसरो की जानिब से किए गए प्रोजेक्ट्स के तहत कम्युनिकेशन, ज़राअत, मौसम और दीगर उमूर के लिए खला में सेटेलाइट को दागा गया है। डॉक्टर के शिवन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तबसरा किया था कि मरीख़ पर सेटेलाइट लॉन्च करने की पहली कोशिश इसरो के साइंसदानों की जहानत का सबूत है। उन्होंने कहा कि इसरो की तहकीक से माहिगिरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। पूरी तरह देसी साख्ता सेटेलाइट की वजह से दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। इसरो ने अब तक 33 मुल्कों के 328 सेटेलाइट्स को मदार में भेजा है। वज़ारत दिफा ने कहा कि इस साल यौम जमहूरिया के परेड के सकाफती प्रोग्राम में 321 स्कूली बच्चे और 80 लोक फनकार शिरकत करेंगे। इस सकाफती प्रोग्राम में दिल्ली के 4 स्कूलों के बच्चे और मशरक़ी जोनल कल्चर सेंटर कोलकाता के लोक फनकार शामिल होंगे। वज़ारत ने कहा कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल दिल्ली और विद्या भारती स्कूल दिल्ली के स्कूली बच्चों के प्रोग्राम के लिए मौजू आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील भारत का विजन होगा, जबकि हम फिट तो इंडिया फिट गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूली दिल्ली के प्रोग्राम का मौजू रहेगा। कोलकाता के मशरक़ी जोनल कल्चर सेंटर के 80 लोक फनकार उड़ीसा के कालाहांडी का लोक रक्स पेश करेंगे। इस बार मुनक़्क़द होने वाली 71वीं यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सूरीनाम के सदर चांद संतोखी शिरकत कर रहे हैं। तेलुगु रियासतों में आज संक्रांति का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ख़वातीन अपने अपने घरों के सामने रंगोलियों से सजाए हैं। खुसूसी पूजा पाठ की गई है। संक्रांति के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद में वाक़े राजभवन में रियासत की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने अहल खाना के हमरा संक्रांति तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रिवायती पोंगल का पकवान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने सेहतमंद समाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर रियासती BJP की जानिब से काइट फेस्टिवल मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने शिरकत की। कौमी OBC मोर्चा के सदर के लक्ष्मण, साबिक़ MP विवेक, रुकन कौंसल रामचंद्र राव और दीगर ने तकारीब में हिस्सा लिया।
इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलुगु अवाम की तरफ से संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि संक्रांति के त्यौहार से आने वाले दिनों में मुल्क में तब्दीली आएगी। कोरोना की वजह से परेशान हाल आवाम में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों के अवाम माली परेशानियों में दो चार हैं। अब जबकि वैक्सीन तैयार हो गई है, यह वैक्सीन कोरोना की वबा से निपटने के लिए आई है। किशन रेड्डी ने कहा कि दुनिया की 4 कंपनीज ने यह वैक्सीन तैयार की है। इनमें से 2 हमारे मुल्क से और 1 हमारी रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में तैयार करदा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए ज़रूरी क़वानीन किसानों की ज़िंदगी रोशन करेंगे। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि वो समझते हैं कि हकीकी इनकलाब 17 सितंबर को आएगा। उन्हें उम्मीद है कि तेलंगाना के शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक हकीकी हुक्मरानी का दिन बहुत जल्द आएगा। अयप्पा स्वामी के अक़ीदतमंदों के लिए मकर ज्योति का दर्शन इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। हर साल संक्रांति के दिन अक़ीदतमंदों को मकर ज्योति के दर्शन का मौका मिलता है। रवां साल भी रिवायती अंदाज में मकर ज्योति के दर्शन करवाए गए। इसके साथ त्रियुना भारनम का जुलूस अयप्पा मंदिर पहुंचा। इस नज़ारे को देखने के लिए लाखों अक़ीदतमंद मुल्क के कोने कोने से सबरीमला पहुंचे थे। हैदराबाद से शिकागो के लिए एयर इंडिया राष्ट्रीय फ़िज़ाई खिदमात शुरू कर रहा है। जुमा से ये खिदमात दस्तियाब होंगी। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से जुमा की दोपहर 12:50 को एयर इंडिया बोइंग 777 तैयारा शिकागो के लिए उड़ान भरेगा। एयरपोर्ट अहदेदारों के मुताबिक हर जुमा मुसाफिरीन के लिए रास्त परवाजें दस्तियाब होंगी। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के लिए हिंदुस्तान तैयार। 16 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पैगाम के साथ वैक्सीनेशन का अमल होगा शुरू। रियासत में टीकाकारी के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात, अजला को पहुंचाई जा रही हैं वैक्सीनेशंस। 31 जनवरी को पल्स पोलियो, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो खुराक। शमशाबाद से शिकागो के लिए एयर इंडिया की रास्त परवास, कल से हर जुमा को ये फिजाई खिदमात होंगी दस्तयाब, ओहदेदारों का बयान। और तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार की धूम, हर जगह देखा जा रहा है जोश व खरोश।